Hey, welcome to The Explainer. So today we're going to get into the sources behind a pretty sudden and dramatic trade standoff between the United States and India. It's a conflict that's really shaking up global economic alliances. It all comes down to this one huge number, 50%. That's the brand new total tariff the United States is slapping on certain Indian goods, and honestly, it sent immediate shockwaves through the world of international trade. And let's be really clear here. This is not some small tweak in a trade agreement. We're talking about a doubling of the old tariff. It's a massive new tax, and it's a serious escalation. It turns what was a disagreement into a full-blown economic conflict. So yeah, that is the billion-dollar question, isn't it? Why on earth did the US suddenly hit India with a 50% tariff? To get our heads around this, we have to start with the official reason, the one coming right from the Trump administration. Okay, so officially, the whole justification for this is being framed around the war in Ukraine. The U.S. has gone on the record linking its trade policy with India directly to India's relationship with Russia. And at the heart of the American argument is this pretty direct accusation. The claim is that by buying up large amounts of Russian crude oil, India is basically funding Russia's ability to keep its war in Ukraine going. Now, this didn't just happen out of nowhere. The Trump administration had been pretty clear, putting out warnings not just to India, but to other countries too. The message was simple: stop buying Russian oil, or you're going to face some serious economic heat, like these tariffs. But hold on, because that's not where this story ends. Not even close. India's response was fast, and it was sharp, and it really suggests there's a lot more going on here than just what the U.S. is saying officially. So India fired right back and essentially asked a very pointed question. Is this focus on our oil imports really the whole story? Or is there maybe a bit of a double standard going on here? And this is where it gets really interesting. India's comeback was to totally flip the script by pointing out what it saw as, hypocrisy. The Foreign Ministry noted that while the U.S. was hammering India over oil, European countries were still buying Russian gas. And, get this, the U.S. itself was still importing Russian uranium. And this was the official bottom line from India. It's a very firm, very diplomatic statement, which is basically a polite way of saying, we're not going to be pushed around, and we're going to make decisions based on what's best for us. Okay, so if the official reason has all these holes being poked in it, what's really going on? What's the actual game plan here? Well, a lot of analysts think the answer is in the classic Trump negotiation playbook. According to one analyst, Vivek Mishra, this is anything but random. It's a classic negotiation tactic that he calls the ladder of escalation. The idea is pretty simple, right? You just keep applying more and more pressure, you keep raising the stakes, until the other side feels like they have no choice but to give in. So what this analysis suggests is that this whole thing might have very little to do with Russia and everything to do with a trade deal that's been stalled for a long time. The theory is that these tariffs are just a giant lever, a way to force India to open up its protected markets, things like pharma, agriculture, and dairy, and to do it on American terms. Which brings us to a really crucial question. Who actually has the power here? In any kind of fight, you gotta understand who has the upper hand. So how does the leverage really stack up between the US and India in this fight? You really see the strategy when you put it side by side with the US-China trade war. China had some serious leverage. It could really pinch the US economy with things like restricting critical minerals. Analysts believe that right now, India has fewer ways to hit back immediately, which could give the U.S. a stronger negotiating position here. I mean, just look at how fast this all happened. It's kind of dizzying. We went from trade talks that were stuck but, peaceful, to a direct threat from Trump, and then boom, a 50% tariff that's about to go into effect on August 27th. In a blink of an eye, negotiation turned into a direct fight. So at the end of the day, what we're really watching here is a high-stakes game of economic chicken. The U.S. is making a bet that its pressure campaign will make India back down. India is betting that it can hold its ground and protect its own interests. And with both sides digging in their heels, the future is, well, it's anyone's guess. And all of this really leaves us with one big question to chew on. As all these global alliances keep shifting around, we're seeing economic weapons, like tariffs and sanctions, being used more and more as the first resort. Is this what a fight between major powers looks like now? That's definitely something to keep an eye on as this whole story unfolds.
बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ट्रंप ने भारत पर फिर बढ़ाया टैरिफ और पुतिन से मिले भारत के एनएसए। अमेरिका ने भारत पर लगाया 25% और टैरिफ, अब कुल 50% हुआ अमेरिकी टैरिफ। जानेंगे क्या होगा इसका असर। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले भारत के एनएसए अजीत डोभाल। इस मुलाकात के मायने क्या है। पूरे गजा को कंट्रोल में लेने के पीएम के नेतन्याहू के प्लान पर आगे बढ़ने की तैयारी में जुटा इजराइल, मगर देश के कई लोग ही हैं इसके खिलाफ। और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा चांद पर बनाना चाहती है न्यूक्लियर रिएक्टर, रखा 5 साल का टारगेट। क्या है इसका मकसद। जापान के हिरोशिमा शहर में अमेरिकन एटम बम अटैक की 80वीं एनिवर्सरी पर विक्टिम्स को किया गया याद, दुनिया से की गई शांति की गुजारिश। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कार्यक्रम में सबसे पहले बात भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और टैरिफ पर चल रही तनातनी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि अगर भारत जल्दी ही ट्रेड डील पर राजी नहीं हुआ तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की इस वार्निंग की डेडलाइन आज खत्म हो रही थी और इस मियाद के खत्म होने से पहले ही अमेरिका ने भारत पर 25% और टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही भारत पर अब लगने वाला अमेरिकी टैरिफ 50% बढ़कर हो गया है। दरअसल अमेरिका को भारत के रूस से तेल खरीदने से परेशानी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका से जो कच्चा तेल खरीद रहा है उसकी वजह से रूस को यूक्रेन जंग जारी रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने भारत ही नहीं, रूस से तेल खरीदने वाले कई देशों को भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी थी। ट्रंप का यह भी कहना है कि भारत उन देशों में से है जो अमेरिका से इंपोर्ट किए जाने वाले सामान पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है। उनका कहना है कि सौदा बराबरी का होना चाहिए ताकि अमेरिका को घाटा ना हो। फिर भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील पर बात होने लगी, मगर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। और व्हाइट हाउस का कहना है कि ये बढ़ा हुआ 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। दरअसल 2 दिन पहले ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल इंपोर्ट कर यूक्रेन जंग में उसकी मदद करने का आरोप लगाया और तभी कह दिया था कि भारत ने अगर ऐसा नहीं किया तो उस पर और भी ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। मगर भारत की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि यूरोप के देश खुद रूस से गैस खरीदते हैं और अमेरिका तो यूरेनियम और दूसरे मिनरल्स अब भी रूस से इंपोर्ट कर रहा है। यही सवाल जब कल ट्रंप से किया गया तो उनका क्या कहना था वो देखते हैं। इंडिया से भारत कहता है कि रूस से अमेरिका यूरेनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, मगर उनके एनर्जी इंपोर्ट की आलोचना करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता करके आपको बताऊंगा। और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं ORF के डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के विवेक मिश्रा। विवेक जी, सबसे पहले तो ये कि अभी तो 25% ही था, भारत उसको समझने की कोशिश कर रहा था, 50% कर दिया गया। ट्रंप चाहते क्या हैं आखिर? ट्रंप बिल्कुल ये चाह रहे हैं अभी कि जो भारत की निगोशिएशंस हैं, कुछ रेड लाइंस जो भारत ने ड्रॉ किए हैं कुछ सेक्टर्स में, वो खोल दें। कुछ सेक्टर्स जिन पे रेड लाइंस हैं, जैसे फार्मा हो गया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, उनको खोल दें। और ट्रंप की ये भी एक पॉलिसी रही है कि उनकी बात मानी जाए, क्योंकि वो लैडर ऑफ एस्केलेशन जो है उनके साथ वरना बढ़ता जाएगा। और वो हमने यूक्रेन के साथ भी देखा कि जब तक यूक्रेन दब नहीं गए तब तक उन्होंने अपनी प्रेशर बनाए रखी। लेकिन यहाँ पे मुद्दा दूसरा है। यहाँ पे भारत के पास ऑप्शंस बहुत हैं और भारत यूक्रेन नहीं है, कोई जंग के बीच में नहीं है। तो प्रेशर हालांकि बहुत होगा, 50% बहुत टैरिफ बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन के हिसाब से अपनी डिवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। सो मेरे ख्याल में प्रेशर है, खासा प्रेशर है, लेकिन लेकिन अभी ये सवाल ये भी उठ रहा है कि जब एनएसए अजीत डोभाल रूस गए थे, अभी बातचीत हो ही रही थी, तब इस टैरिफ को लगाने का मतलब क्या है? हाँ, ये बड़ा बैफलिंग है और ये टिपिकल ट्रंप बिहेवियर है, क्योंकि आप जो स्टीव विटकॉफ भी वहां पे मिलके 3 घंटे वार्तालाप चली और मेरे ख्याल में कुछ निकला नहीं होगा, क्योंकि रशिया का स्टांस क्लियर है कि वो 4 जो रीजन हैं वो उनसे यूक्रेन बाहर जाए और हमेशा के लिए नेटो में जुड़ने की पॉसिबिलिटी को हटा दे, जो यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका हाइफनेशन
एनर्जी इंपोर्ट से करना और ये मानना कि एनर्जी अगर भारत खरीदना कम कर दे, बंद कर दे, तो ये रशिया यूक्रेन वॉर बंद हो जाएगी, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन ये बड़ा बैफलिंग है कि इसकी टाइमिंग कम से कम आप वेट कर लेते, कम से इसमें एक और सवाल उठता है, चीन के साथ भी आपने विवेक कुछ ऐसा ही देखा होगा कि टैरिफ वॉर लगातार चल रहा था, दोनों तरफ से बढ़ाए जा रहे थे, वहां कैसे बात बनती दिख रही है? चीन की लेवरेज ज्यादा है। पहली बात तो यह है कि चीन का आप जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है अमेरिका, जो ईयरली एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा है, तो लेवरेज चीन ने, और 145 चीन ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए, तो अमेरिका को पिंच होने लगा। दूसरा, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग मिनरल्स जो अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग के हार्ट के कोर है, उसको चाइना ने धीरे धीरे उस पर नूस कसना शुरू कर दिया, तो प्रेशर अमेरिका को फील होने लगा। इंडिया के पास लेवरेज उस सेक्टर्स में नहीं है जहां पे अमेरिका को इमीडिएटली हर्ट किया जा सके, और इस पे आपको ये मानना होगा कि भारत और अमेरिका के बातचीत में अमेरिका के पास लेवरेज ज्यादा है, और इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी दूसरी तरह से शेप होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अमेरिका की ओर से 50% एडिशनल टैरिफ लगाने के ऐलान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने हाल के दिनों में रूस से तेल आयात करने को लेकर भारत को निशाना बनाया है, जबकि और भी देश ऐसा ही कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि भारत राष्ट्रीय हित में ज़रूरी कदम उठाता रहेगा। तो फिलहाल ये ट्रेड वॉर कहाँ तक जाता दिख रहा है, इस पर सबकी निगाह है। और दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के साथ सीज फायर करने के लिए जो डेडलाइन दी थी, वो 2 दिन बाद 8 अगस्त को ख़त्म होने वाली है। और इसी सिलसिले में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन के करीबी ने इस मुलाकात को कारगर बताते हुए कहा कि रूस को ट्रंप की तरफ से कुछ संदेश मिला है और रूस ने भी ट्रंप के लिए मैसेज भिजवाया है। जनवरी में व्हाइट हाउस में वापसी के पहले ट्रंप ने दावा किया था कि वो एक दिन में रूस यूक्रेन जंग खत्म करवा सकते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद जब उनके हाथ ये कामयाबी नहीं लगी तो वो ना सिर्फ पुतिन से नाराज़ होते गए, बल्कि उन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले देशों को सख्त चेतावनी भी दी। अगर इस शुक्रवार तक रूस के साथ कोई बातचीत कारगर नहीं होती है तो उन देशों पर और ज़्यादा टैरिफ और सैंक्शंस लगाए जाएंगे। भारत पर तो उन्होंने 50% और टैरिफ लगा ही दिया है। विटकॉफ 5वीं बार रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। मॉस्को से बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग इस पर और जानकारी दे रहे हैं। The position of Moscow is that Russia has the initiative in this war on the battlefield. फिलहाल रूस का इस पर यह स्टैंड है कि जंग के मैदान में उसे अभी भी बढ़त हासिल है, तो ट्रंप के कहे अनुसार बिना शर्त सीज फायर के लिए तैयार होना उसके हित में नहीं है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि रूस के साथ इस मोलभाव में अमेरिका की आर्थिक ताकत काम आएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और इसलिए हम इस मोड़ तक पहुंचे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी कि इस हफ्ते के आखिर तक अगर रूस जंग खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है तो और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाएंगे। रूस के कई एक्सपर्ट्स को नहीं लगता था कि ट्रंप वाकई ऐसा करेंगे, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि स्टीव विटकॉफ ने रूस के आगे क्या प्रस्ताव रखा है। ये भी नहीं पता कि वो पुतिन के लिए ट्रंप की तरफ से क्या डील लेकर आए हैं। ऐसे में आगे क्या समझौता होगा वो एक अलग मुद्दा है। Whether that produces a deal, an agreement, that's another matter. तो बहुत लंबे वक्त से ये जंग चल रही है और इसे ख़त्म कराने की कोशिशें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं, और अब एक तरह से इसके लिए भी वो भारत पर टैरिफ ज़्यादा लगाने का दबाव डाल रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि अगर रूस और यूक्रेन की ये जंग ख़त्म हो जाती है तो क्या ये सैंक्शंस भी थोड़े ढीले पड़ेंगे। और बात इजराइल हमास जंग की भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरे गजा पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं। इस बीच यूएन के एक टॉप ऑफिशियल ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल गजा में अपना मिलिट्री ऑपरेशन और बढ़ाता है तो इसके बहुत बुरे नतीजे झेलने होंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मिरास्लाव जेनका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि अगर जंग बढ़ती है तो और ज़्यादा फ़लस्तीनी और बचे हुए इजरायली बंधकों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने इजरायली बंधक एवियातार डेविड के भाई इलाई डेविड से भी बात की। कुछ रोज़ पहले हमास ने जब वीडियो पब्लिश किया था जिनमें एवियातार और एक और इजरायली बंधक बेहद कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, उसके बाद इजराइल ने इस मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी। और जितने लोगों को इजराइल से बंधक बनाया था हमास ने, उसमें से 20 के करीब ही अब जिंदा बचे हैं, इसकी उम्मीद है। वहीं हमास की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि सेंट्रल गाजा में नुसैरत रिफ्यूजी कैंप के पास 4 ट्रक पलट गए हैं। इस हादसे में 20 लोगों की जान गई है, करीब 30 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ट्रकों की तरफ बढ़ने लगी, लोग उस पर चढ़ गए और सड़क भी खराब थी, जिसकी वजह से ट्रक चला रहे ड्राइवर्स ने कंट्रोल खो दिया। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह।
ब्रेक से पहले हमने बताया था कि कैसे इजराइल पूरे गजा पर कब्जा करना चाहता है ताकि जिस किसी भी जगह हमास ने इजरायली बंधकों को छिपा कर रखा है वहां से उन्हें छुड़ाया जा सके। हालांकि इस योजना को लेकर इजरायली सेना की राय बटी है। ऐसा बताया यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता योलान नेल ने। There's said to be Israeli military resistance to this idea of full occupation. गजा पर पूरे कब्जे के प्लान पर इस्राएली सेना के अंदर भी विरोध नजर आ रहा है। एक वजह यह है कि उससे उन बंधकों की जान जोखिम में पड़ सकती है जिन्हें उन इलाकों में कैद रखा गया है जहां आगे सेना को जाना होगा। और दूसरी बात कि सेना खुद फिलहाल तनाव में है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आए बयानों से लगता है कि सिक्योरिटी कैबिनेट जो भी फैसला लेगी, इस्राएली सेना उसे अमल में लाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि कैबिनेट के फार राइट मिनिस्टर्स गजा पर पूरे कंट्रोल के प्लान को मंजूरी देंगे। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो पोल्स के मुताबिक 4 में से 3 इस्राएली अब सीज फायर चाहते हैं ताकि बंधकों की वापसी हो पाए। According to polls who want a ceasefire to bring the hostages back home, that for them is the number one issue. और अब देखिए दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ने बताया है कि साल के शुरुआती 6 महीने में उसने करीब 70 लाख अकाउंट बंद कर दिए हैं। ये अकाउंट स्कैमर्स से जुड़े हुए थे। व्हाट्सएप ने कहा है कि बंद किए गए 70 लाख अकाउंट में से कई दक्षिण पूर्व एशिया के संगठित अपराध से जुड़े हुए थे। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी ने सांस से जुड़ी बीमारियों की वैक्सीन बनाने के रिसर्च के लिए दी जा रही $50 करोड़ की फंडिंग रोक दी है। उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट को लगता है कि कोविड महामारी के दौरान दी गई mRNA वाली वैक्सीन के खतरे ज्यादा हैं। हालांकि डॉक्टरों ने कैनेडी के बयान की आलोचना की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन को जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के मामले में समन भेजा गया है। सेक्स ट्रैफिकर मामले में दोषी पाए गए जेफरी 2019 में जेल में मृत मिले थे। मामले से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उनके अपने समर्थकों का दबाव बढ़ता जा रहा है। एक नई रिसर्च में पता चला है कि हो सकता है पहाड़ों में रहने वाली मादा गोरिल्ला दूसरी मादा गोरिल्ला को काफी इज्जत और प्यार से उनसे पेश आती है। वो उन्हीं मादा गोरिल्ला के साथ ग्रुप्स बनाती है जिनके साथ उनका पहले किसी तरह का सोशल कनेक्शन होता है, फिर चाहे वो कितने ही सालों बाद क्यों ना मिली हो। और चांद पर पहुंचने की ख्वाहिश तो कईयों की होती है। अमेरिका, चीन, रूस, भारत, जापान जैसे देशों में चांद की सतह को लेकर होड़ मची है। लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने तो साल 2030 तक चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की तैयारी तेज कर दी है। देखिए बीबीसी संवाददाता जॉर्जिना रेनार्ड की रिपोर्ट। 3, 2, 1 स्पेस रेस फिर शुरू हो गई है और इस बार रेस है न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की। नासा के एक्टिंग हेड ने एजेंसी को 2030 तक चांद पर एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की योजना पर तेजी से काम करने का आदेश दिया है। ये चांद पर अमेरिका के एक परमानेंट बेस बनाने के सपने की ओर प्रतिबद्धता को दिखाता है। अगर इंसानों को चांद पर रहना है तो बिजली चाहिए होगी, लेकिन वो बिजली आएगी कहाँ से? वहाँ टर्बाइंस चलाने के लिए हवा नहीं है और ईंधन वहाँ ले जाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। सोलर पावर 14 दिनों तक काम करेगी और बाकी 2 हफ्तों के लिए वहाँ अंधेरा रहेगा। ये सब न्यूक्लियर पावर को सबसे रियलिस्टिक ऑप्शन बनाता है। हमने इस दशक में चांद तक जाने और दूसरे काम करने का फैसला इसलिए नहीं किया है कि वो आसान है, बल्कि इसलिए किया है क्योंकि वो मुश्किल है। कई देश अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश में हैं। चीन और रूस ने मई में कहा था कि वो 2035 तक अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे। नासा से कहा गया है कि उसे चांद पर पहले पहुंचना होगा। कुछ को डर है कि ये चांद पर जमीन कब्जाने की एक कोशिश है। मुझे लगता है कि कंपटीशन अच्छा हो सकता है। इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, इनोवेशन और निवेश बढ़ते हैं, जो कमाल की बात है। लेकिन अगर इस कंपटीशन में आपकी सोच का दायरा सिमट जाए, जैसे उसका फोकस सिर्फ राष्ट्रीय हित हो या फिर कब्जे की मंशा हो, तो हम सोलर सिस्टम और उससे आगे की खोज करने वाले बड़े मकसद से भटक जाएंगे। लेकिन नासा के बजट में कटौती और उसके स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स पर उठते शक की वजह से शायद चांद पर न्यूक्लियर पावर की योजना को हकीकत बनने में अभी काफी वक्त लगेगा। बीबीसी संवाददाता जॉर्जिना रेनार्ड की रिपोर्ट। और जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने आज से 80 साल पहले परमाणु बम से हमला किया था। एटॉमिक हमले के 80 साल पूरा होने पर हिरोशिमा में एक सेरेमनी हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर हुए इस परमाणु हमले में 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी।
हिरोशिमा आज भी परमाणु हमले के खतरे को लेकर चेतावनी दे रहे हैं वहां के लोग। देखिए बीबीसी संवाददाता जोनाथन हेड की रिपोर्ट। 8時15分になります。 हर साल हिरोशिमा के मेमोरियल पार्क में परमाणु हमले को याद किया जाता है। ये पार्क उसी जगह बनाया गया है जहां 80 साल पहले एटम बम फटा था। इस हमले से शहर तबाह हो गया था। मेमोरियल पार्क में एक लौ जलती रहती है। ये तब तक जलती रहेगी जब तक कि दुनिया भर के सारे परमाणु हथियार खत्म नहीं कर दिए जाते। गनबाकू डोम के सामने नदी के किनारे बनी ये वो कुछ इमारतें हैं जो हमले के बाद बच गई थीं। लोगों ने गाना गाते हुए हमले में जान गंवाने वालों को याद किया और नदी में फूल भी बहाए। उस रोज सुबह 8:15 बजे धमाका हुआ था। इसी वक्त वो घंटी बजाई गई जो पीड़ितों ने 61 साल पहले यहां लगाई थी। जापान के नेताओं ने इस बार फिर दोहराया है कि वो दुनिया को शांति की ओर ले जाएंगे। In some ways, Hiroshima has defined modern Japan. The shock of its हिरोशिमा मॉडर्न जापान को दिखाता है। हिरोशिमा ने परमाणु हमले के बाद खुद को खड़ा किया और इसे मिलिट्री पावर के बजाय व्यापार के जरिए विकसित किया। 80 साल बाद शांति की उम्मीद कम होती जा रही है। दुनिया में आपसी सहयोग कम हो रहा है। इसकी जगह ऐसी दुनिया ने ले ली है जिसमें परमाणु हथियार खत्म करना एक दूर का सपना लगता है। weapons seems a very distant dream. लोगों ने प्रोग्राम का अंत उस हिरोशिमा सॉन्ग ऑफ पीस से किया जो हमले के 2 साल बाद बनाया गया था। आज ये गाना उन बच्चों ने भी गुनगुनाया जिन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा, लेकिन ये लोग ऐसे दौर में बड़े होंगे जो उनके माता पिता की दुनिया से कहीं ज्यादा अजीब और अनसेफ होगी। बीबीसी संवाददाता जोनाथन हेड की रिपोर्ट। और कार्यक्रम को लेकर आप फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना है।